Hey, hi, this is Navina, and in this episode of In My Mind, I have a dear friend of mine, Bonish Agarwal. He is a senior software engineer and he has an experience in building full stack and Gen AI application using various programming languages and framework. He is a tech enthusiast and love learning new things coming in market. Apart from that, he is a really good human being, and I had enjoyed a lot while recording this podcast. I hope you like it. Enjoy the show. तो अपने बारे में कुछ बताओ थोड़ा. Sure. Um, so starting out, we are college batchmates, हाँ. right? And secondly is I come from Rajasthan. मैं Rajasthan से हूँ, Mount Abu, which is a hill station, right? Right. So I did my high school in Mount Abu itself. फिर मैं कोटा गया, right? मैंने वहाँ 11th 12th करी. मैंने as usual the competitive exam of IIT JEE, right? I prepared it for 2 years. Uh, Unfortunately मैं नहीं हो पाया clear. Right, and then I came back to Pune for uh, for my BTech, right? So I opted same like others, computer science, right? तो computer science करी 4 साल and then I'm here as a senior software engineer. सही है यार. Yes. मतलब कोटा मतलब मतलब क्या होता है उसको बहुत ज्यादा मेहनत वाली बात है. मैं देख Yes. कोटा फैक्ट्री तो देखी है Yes, मैंने. तो क्या absolutely. वही वैसा है या फिर कुछ अलग है? हाँ वैसा ही कुछ है, but I would say that it's just 10% of what actually is Kota. हाँ. Kota is all about hard work and it's all about so there are positives and negatives both of the things. But yeah, what Kota factory has displayed, it's really good. It's 10% तो है ही वो मतलब reality का. So yeah, it's for hardworking students. राइट. तो कोटा के बाद तो तुम अभी आए हो तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, Right. तो अभी तो तुमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब अच्छा तुम डायरेक्टली फर्स्ट हम लोग Correct. ऐसा मैं डिप्लोमा करी हूँ. तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हाँ मतलब कंप्यूटर में Correct. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस Correct. ये है वो. तो फिर Yes. तुमको वो चीज कैसे तुमने अडेप्ट करी और तुमको Right. क्या एक्सपीरियंसेस हुए उसमें? Right. Yes. That has been a real challenge for me. You said it right. कि you guys coming from diploma are very well prepared in terms of computer science. But मेरा वैसा background नहीं था. I told you that मैं कोटा से आया था तो मेरे को सिर्फ basic science का ही idea था. Computers was only chosen by me because there was a hype of computer engineering, right? So-called neighbors कि नहीं computer science is the future, right? And so I opted for computer science, to be very honest, right? I didn't know anything about computers. So मेरा experience was good enough, right? A few of my friends in the first year itself suggested me that since your mathematics is really good, you have good logics, computer science is for you, right? Because programming के अंदर logics बहुत लगते हैं. So I thought कि नहीं, I can do well in computer science, right? So absolutely that has been a real struggle for me to overcome these challenges कि जो computers में सीखने के लिए, इसीलिए second year में enter होते ही fail हो गया था मैं computer science में, right? And वैसे मैथ में मैं भी फेल. yes. ये इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा था कि मैथ में कैसे करना है. So you see pros and cons of each and everything, right? So okay, yeah, so computer science में fail हो गया था, but that was not a big issue क्योंकि वो पहला ही exam था. But then it taught me something that okay, I needed to figure out something कि जहाँ से मैं computer science पढ़ सकता हूँ, मैं जल्दी grasp कर सकता हूँ, because you diploma guys were far ahead of us in terms of computers, right? So one thing in my experience, I would say that people or college students who don't have any computer background, their mindset for this should be communicating with their college friends itself, right? So मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ही फ्रेंड्स ने मेरे को हेल्प किया था कंप्यूटर्स को समझने के अंदर. वाई एंड दोज फ्रेंड्स वर डेफिनेटली डिप्लोमा गाइज, राइट? सो आई मेड गुड फ्रेंड्स. They taught me about computers, they taught me fundamentals of computers, and उन्होंने इतनी मेरी हेल्प करी, मैं भी धीरे धीरे मेहनत करता गया. एंड इन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आई वाज sort of a full-fledged person who has at least a fundamental knowledge of computer science and the language we are working on, right? I wouldn't say that I was pretty good compared to diploma, but I was slowly progressing towards increasing my knowledge in computers. Yeah. So we're talking about college and moving out. So what was your experience when it comes to like moving out from north to here Maharashtra? Right. तो cultural differences हो Correct. गए, फिर language barriers हो गए. Right. तो वो चीजें तुमने कैसे टैकल की? क्योंकि हाँ मतलब कोटा में हो, तुमने बाहर तो निकला वो चीज तो है, Correct. but then तो पूरा कल्चर चेंज हो गया तुम्हारा Yes. कि वहां से तुम यहाँ आए. Correct. फिर बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि राइट फ्रॉम
मतलब खरीदने से मतलब सब्जी खरीदने से बहुत Correct. सारी चीजें Correct. डिफरेंस करती है। Right. तो फिर वो चीज को तुमने कैसे टैकल किया और वो Right. चीज को तुमने कैसे सीखा और क्या क्या चीजें Hmm. तुमको लगा कि यार ये चीज अगर कोई बाहर जा रहे तो उसको हेल्प हो सकती है। Correct. Correct. That's really a good question क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने बहुत स्पेशली फेस करी है राइट। कोटा भी राजस्थान के अंदर ही है तो उधर इतनी प्रॉब्लम नहीं, एज यू सेड कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स कुछ खास थे नहीं, बट पुणे वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी राइट। व्हेन आई केम हियर इन द कॉलेज द फर्स्ट डे कि मतलब मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी राइट। मेरे कॉलेज के जितने भी बैचमेट्स थे वो उनकी मराठी में ही भाषा थी, ठीक है राइट। सो I wasn't able to communicate well enough with them, right? When I used to speak Hindi, they were communicating with me because I really felt good about people, right? Because मैं हिंदी बोल रहा हूँ, they are still communicating with me, right? But then I have to also understand their mother tongue. So there was sort of a language barrier between me and them. Cultural differences तो थे, that's for sure. But I think that मेरा माइंडसेट यही था कि आई हैव टू मेक फ्रेंड्स राइट। आई एम सॉर्ट ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन राइट। सो वो तो पता है, वो तो मुझे जब तक देखा था मैं इसलिए था बड़ अच्छा वो तो right, so since I'm an extrovert person, I like to make friends, right? I like to communicate with people anyhow, right? So what I did was I was open for communication, and I think that people who are coming outside of Maharashtra, right? And so I think that they should be very open for communication, right? Because people here are really very good. तो अगर हम ओपन फॉर कम्युनिकेशन रहेंगे तो विल बी easily be able to communicate with others, right? तो मेरा बहुत अच्छा रहा इस मामले में। I got good friends in the first year itself, जहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ कम्युनिकेशन भी अच्छे से किया because I didn't knew even if I didn't knew Marathi, they were able to communicate with me in Hindi, right? They didn't let me go sort of की sideways, right? They always included me in that group, and then धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गई, so I was also able to communicate with them effectively. Second year, third year, so in every single year मतलब मेरा मराठी भी improve होता गया टेक्निकल्स के साथ। बहुत अच्छी थी मराठी में भी So देखना तुम that's part of every college student. Yes. या तो मतलब कल्चरल डिफरेंसेस तो रहते हैं, बट आई थिंक आपका माइंडसेट शुड बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन। दैट्स आई थिंक दैट will always help you because you don't know that where you'll be going further on your life. आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँ, and हो सकता है I'll be moving out of India, then you have to understand, you have to get out of your comfort zone and understand the languages and the culture of new people, right? And अच्छा भी लगता है कि नए कल्चर्स को समझना, नई लैंग्वेज को समझना is pretty good, right? So I think that's my experience overall. Yeah. So there are two, three things like being adaptive, open for communication, Yes. and look for new experiences Correct, and correct. experience those things. Right. Yeah, positive way. Take all Take things as a positive. Correct. So वो एक चीज़। taking everything in a positive way is a really must, right? तो पहले 2 साल में तो हम लोग को फिगर आउट करने में ही जाता है कि यार लैंग्वेज जैसे अगर तुम बाहर से आए हो तो फिर वो लैंग्वेज हो गया, Correct. कल्चरल डिफरेंस हो गया, वो फिगर आउट करते हो, Right. फिर अपने स्टडीज ये वो। तो फिर तुम क्या सजेस्ट करोगे कि फर्स्ट 2 इयर्स लोग जो सेकंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स है उसको वो चीज टैकल करने में या फिर वो चीज को फेस करने में क्या तुम सजेस्ट करोगे? Right. So okay. So the college students who are in the first 2 years, right? जो मैं से फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, I would say that obviously if you are or if you aren't from the computer background, right? What I suggest is in my experience, like students को है ना सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। Absolutely देखो उनको वहाँ तो फोकस करना ही है, right? Whether you are from any background, whether it's engineering, medical, you're doing CA, right? Anything. You have to enhance your knowledge in terms of technical aspects, right? So being a computer engineer, definitely कि मुझे computers में enhancement करना ही था, technicals अच्छे करने ही थे, right? Being in first or second year college student, right? But secondly, it's a chance in the first 2 years that you expose yourself, right? आपको exposure मिले ज़्यादा से ज़्यादा, where you can be part of extracurricular activities. So मैंने मेरे experience में first 2 years मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई के साथ मस्ती करी, स्पेशली मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिया, फिर मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करी, राइट? यस कोई भी स्पोर्ट हो हम दोनों तो थे ही, करेक्ट, मतलब वो डिफॉल्ट था, यस। सो मतलब 100 मीटर्स हो गए, कैरम हो गया, दैट वाज रियली अ गुड फन, राइट? वो रिमेम्बरेबल है, मतलब मेरे लिए मेमोरेबल है ना, मेमोरेबल है मतलब ये सारी चीजें। सो इन द फर्स्ट 2 years आई थिंक कि कॉलेज स्टूडेंट्स को है ना ये बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करें, बिकॉज क्या होता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से काफी चीजें सीखते हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा कि कैसे सीनियर्स से आप सीख सकते हो स्पेसिफिकली, बिकॉज
आप जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो तो सीनियर्स विल बी लीडिंग दैट एक्टिविटी. So you being a part of team, you get the chance of being a good team player, right? So that's a good quality that you need to have. तो आप टीम प्लेयर स्किल सीखते हो. सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, राइट? बिकॉज यू हैव टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स और मे बी पीपल अराउंड यू, राइट? बिकॉज यू आर हैविंग फन इन योर एक्टिविटी और एनी एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग विद, राइट? जैसे कि हमने एक एक्टिविटी की थी, we hosted Valentine's Day in the second year, right? Everyone was wearing white, even though they were in a relationship. You know, guys. So matlab Valentine event was really the first chance that I got in the college to be an anchor, right? So I always wanted that stage ki yaar, where I can expose myself, right, to the entire public, because I love public speaking. So that's where I think, और वो public speaking और multiple activities ने मेरी communication skills और enhance करी धीरे धीरे. And those communication skills you don't understand that उधर हो सकता है कि उधर तुम्हें समझ में ना आए, but those communication skills उन activities के जो activities आप सीखते हो ना, वो आपको बाद में बहुत काम आती है सारी चीजें, right? When after 4th year you try with placements, you communicate with your interviewer, or within corporate as well, when you communicate with your colleagues or seniors, वो चीजें आपको सच में काम आती है, राइट? सो आई थिंक इन माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस, जो कॉलेज के बच्चों का माइंडसेट इन द फर्स्ट 2 years should be 2 things. Number 1 is definitely focusing on their technicals, focusing on their studies at the best. Second is also being a part of extracurricular activities and co-curricular activities. Be a part of every activity you can, right? Communicate with your seniors, play around, have fun in the first 2 years, because third year is going to be very disastrous for you. Third year बहुत crucial रहता है. होता है. थर्ड ईयर पे तो अभी लाइक वी सर्च फॉर इंटर्नशिप, Correct. लुक फॉर कोई कंपनी आई है क्या, कैसे है, क्या है, तो हम लोग का तो पूरा उसी में चला जाता है पूरा. Correct. तो फर्स्ट 2 years ऐसा है कि जितना तुम पढ़ाई में तुम करो दैट्स गुड, बट देन जितना तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तुम पार्टिसिपेट करोगे, Right. उसमें तुमको बाद में बहुत ज्यादा Correct. हेल्प होता है. जैसे कि Right. जैसे तूने बोला कि अगर भले कोई तुम्हारे रेज्यूमे में अगर वो चीज आ गई, Yes, soft क्यों skills नहीं? आती है तो improve होता है आपका हाँ. resume. और जो भी अभी कॉर्पोरेट में है उन लोग को पता है कि बतियाना कितना जरूरी है. बतियाना अभी कितना exactly. तुमको पता ही है. Correct, correct, है ना? correct. तो Yes. वो भी चीज है, तुम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा Correct. तुमको, कैसे लोगों में खुद को प्रेजेंट करना वो भी सीखना होता है. Exactly. तो फर्स्ट 2 years में तुमको वो एक्सपोजर मिला तो फिर Correct. अच्छी बात है. I think you made a good point. मतलब कि you need to enhance your skill in terms of how do you present yourself in front of thousands and thousands of people, let's say, right? Because even though it's not 1,000 correct. people, but A limited group the of people. you are around. Correct. So yes, that's a good point. In the first 2 years, you have to learn that how do you present yourself. Yeah. Yes. It will gradually वो improve होगा, Yes. but then start कहीं ना कहीं Yes, तो होना ही correct. चाहिए. Start to So that's the thing. So अभी first 2 years तो हो गए. Now you are in third year. Correct. So how was like my experience of third year was like हमारा तो लॉकडाउन में हो गया. Yes. पूरा हम लोग का तो वही था. But Yes. थर्ड ईयर का तो ऐसा होता है कि प्लेसमेंट्स हो गए, फिर Hmm. बाद में you have to work on an internship Correct. and also studies. So many things. Correct. So how was your thought process towards it? Yes. So rightly said that our third year and fourth year went in COVID, right? COVID ने मतलब सब छीन लिया हमसे, हमारी college life छीन ली, इतनी fun loving college life छीन ली. But then you see third year is very crucial, right? As part अगर मैं college के बच्चों के mindset से पढ़ूँ, so third year is really very crucial, because after third year placements, companies आना शुरू हो जाती है, right? And you have to cover all those things like aptitude and interview process goes on. आपको फोर्थ ईयर भी शुरू हो जाएगा. सो थर्ड ईयर इज रियली वेरी क्रूशियल, जहाँ पे आप आपके टेक्निकल्स को कवर कर सकते हो, ठीक है, एट द बेस्ट, राइट? टेक्निकल्स आपको एटलीस्ट आपके 80% टेक्निकल्स क्लियर हो जाने चाहिए थर्ड ईयर के एंड तक. तो मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल था, राइट? बिकॉज मैं थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड से नहीं रहता, तो मेरे को धीरे धीरे टाइम लग रहा था कवर करने में, राइट? सो फॉर मी इट वाज रियली कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कवर कर सकता हूँ. सो थर्ड ईयर वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मी. सो मैंने तो थर्ड ईयर में स्पेसिफिकली बहुत मेहनत करी, एंड कोविड था तो यू डिडंट हैड द चांस टू परफॉर्म गो इनटू एनी करिकुलर एक्टिविटीज, राइट? सो पढ़ाई एक चीज थी जो कर सकते थे. सो मैंने ज्यादा फोकस किया कि मेरा थर्ड ईयर पूरा पढ़ाई में ही जाए, इम्प्रूविंग माई सेल्फ. डेफिनेटली I always focus, and I would suggest every single college student to focus on overall growth of your personality, right? So as I said कि आप technicals भी improve करो, communication skills भी improve करो.
सो बट मेरा थर्ड ईयर पूरा टेक्निकल्स के अंदर ही गया कि मैं अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर रहा था, राइट. सो एंड उस डरावने माहौल के अंदर आपके स्टडीज के अलावा कुछ था ही नहीं, राइट. सो डेफिनेटली थर्ड ईयर मेरा उसी में गया पढ़ाई में. एंड यस, एज आई सेड कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलेज बैचमेट्स के साथ, बिकॉज फ्रॉम देम यू लर्न, राइट, एंड दे लर्न फ्रॉम यू, राइट. दैट्स अ टू एंड फ्रो प्रोसेस, राइट. जैसे सेकंड ईयर में आप लोगों को हमारी हेल्प लग रही थी मैथ्स में, एंड वी वर गेटिंग हेल्प फ्रॉम यू फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स, राइट. सो दैट्स व्हाई इट गोज टू एंड फ्रो, राइट. हालांकि you got failed in mathematics and I got failed in computers, but that's okay, right. So that's a part of college, right. अगर आप फेल नहीं हुए तो आपने सीखा ही क्या, राइट. और अब आज मेमोरेबल बन गई वो हमारे लिए कि हम फेल हुए थे कभी, राइट. सो दैट्स ओके, बट या थर्ड ईयर काफी ज्यादा पढ़ाई में गया. और मैं यही सजेस्ट करूंगा कॉलेज के बच्चों को भी कि enjoy the first 2 years of your college, but be prepared for the third year. And third year primarily focus on all the things that you need to study and get prepared for your interviews, right. And if I talk about my stream, specifically computer engineering, I think that college students should focus on, like, for example data structures and algorithms. That's the first thing that you need to know for interviews, right. Second thing is focusing on computer fundamentals, right. Jaise oops concepts ho gaye, then pick up a programming language, do code around it, make projects, everything you should do. You should dig deep into the programming language and projects banao, jo karna hai karo, bas technicals ke andar jitna deep जा सकते हो जाओ, right. So and now it's resources open hai, right. You have chat gpt, right. तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ. So I think third year should कॉलेज के माइंडसेट से थर्ड ईयर इस पे ही फोकस रहना चाहिए ज्यादा. वही हम लोग को असाइनमेंट भी ऐसे देते हैं कि प्रोजेक्ट्स हम लोग बना Correct. सकते हैं, तो उसका एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं. Right. मतलब एक्सटर्नली हमको कुछ प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. Yes. जो भी असाइनमेंट है उसको अगर एज अ प्रोजेक्ट देखते तो Right. बाकी जो इंटरव्यूअर है उसको भी मतलब Yes. दिखा सकते हैं हम लोग. Correct. उस हिसाब से मैं कुछ प्रोजेक्ट है, मेरे फ्रंट एंड मुझे बहुत पसंद आता है. फिर बैक एंड में चली गई, बट फ्रंट एंड में कुछ लेआउट्स ऐसे बनाए Right. प्रोग्रामिंग करके वगैरह, तो वो प्रेजेंट कर दिया था मैंने. Right. तो वो उस हिसाब से भी हम लोग कुछ दे सकते हैं असाइनमेंट वगैरह लेके. Absolutely. उसको थोड़ा हाई एंड कर सकते हैं, मतलब वैसे भी इफ यू थिंक अबाउट. हाँ, यस, मेरे एक्सपीरियंस में तो मतलब मेरा ऐसा ही रहा कि थर्ड ईयर के अंदर मैं समझ गया था कि आई वाज नॉट मेंट फॉर फ्रंट एंड, राइट. मेरा विजुअलाइजेशन उतना अच्छा नहीं था, मेरी डिजाइन उतनी अच्छी नहीं थी. अगर मुझे एक बटन को सेंटर में करना हुआ तो शायद एक दिन लग जाता था मुझे कि उसको सेंटर में कैसे लेके आओ. सो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर. सो उधर मेरे को लग गया था कि आई एम नॉट मेंट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, रादर बीइंग अ गुड बैक एंड डेवलपर इज गुड फॉर मी. सो आपको थर्ड ईयर में ये भी समझ जाता है कि आप क्या स्ट्रीम में पर्टिकुलरली जा सकते हो, राइट. पीपल who are in ML, machine learning, data science, right. So उनको भी समझ जाता है कि नहीं, we are good in machine learning, हमें machine learning की तरफ जाना चाहिए. जैसे कि मैंने भी machine learning लिया था थर्ड ईयर में. So मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ machine learning, data modeling करते समय. So मैंने भी सोचा था कि मेरा फ्यूचर अब machine learning में होगा. उस समय मैंने प्रोग्रामिंग के साथ मशीन लर्निंग को भी कंटिन्यू किया मेरे नॉलेज स्टडीज के पार्ट के हम लोग अंदर. का मेजर था ना, तेरा Major machine learning था. था, मेरा Yes. साइबर सिक्योरिटी था. Yes. बट वो चीज तुमने सही बोली कि मतलब जब हम 100 चीजों पे काम करते हैं तब Correct. हमको समझ में आता है कि क्या चीज है. मैंने Correct. बैक एंड भी करी, हम लोग को Yes. सब्जेक्ट था, बट मेरे को उतना इंटरेस्ट था नहीं. मेरे को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट था, हम्म. तो मैं वहां पे आगे चली गई. और साइबर सिक्योरिटी की, हम्म. तुमको बैक एंड में इंटरेस्ट था और कोडिंग पे भी इंटरेस्ट था, तो हम्म. फिर तुमने उसमें किया, तो फिर तुम मशीन लर्निंग करी. तो हम्म. वही चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो तुम भले ही तुम वो चीजें करते हो, बट तुम साइड बाय साइड अगर ये चीज भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ना, जैसे कि कौन सा तुमको इंटरेस्ट आ रहा Yes. है, या फिर टेस्टिंग में आ रहा है, Correct. डेवलपमेंट में आ रहा है, किस Correct. चीज में आ रहा है, वो भी तुम एक्सप्लोर कर, तो फिर आगे तुमको जब तुम प्लेसमेंट पे बैठोगे ना, हम्म. तब तुमको और क्लैरिटी आएगी. Right. कि मुझे टेस्टिंग का चाहिए हम्म. था पर मुझे तो मिला नहीं. Right. वो अलग बात है, फिर मैंने बाद में स्ट्रीम चेंज कर दिया. बट तुम लोग Yes. को जैसे मेरी और एक फ्रेंड है पद्मजा करके, यू गाइस आर रियली Yes. गुड इन कोडिंग, तो तुम लोग वहां पे चले गए. सो एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा Correct, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 2 इयर्स Yes. और थर्ड ईयर में भी. तुम जैसे हम लोग बोले कि बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, और और जितना हो सके तुम प्रोजेक्ट्स पे काम Correct. करना Yes. इम्पोर्टेंट है, ताकि आगे जाते इंटरव्यू देने के वक्त भी तुमको वो प्लस पॉइंट होगा कि यार मैंने प्रोजेक्ट पे भी काम किया है. नॉट नेसेसरी लाइक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि मतलब तुमको वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है. Correct. कि Right. इंटरव्यू में वो नहीं देखेगा कि यार वो तुमने प्रोजेक्ट, मतलब वो तो है ही, इट्स अ गुड पॉइंट, बट जब वो डीप जाने के बाद उसको वही समझना है कि यार तुम उस कंसेप्ट को तुमने कैसे समझा, और भले ही वो चीज अगर तुमको वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम कहीं तो भी Exactly. Correct. Rightly said. I think that connecting your things into computer science background, like
मेरे ही मैनेजर ने मुझे कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, राइट, and you have to get adapt to tools, right, because tools are coming out in the market every single second, every single minute, right? So for example, today I'm good in Python, but tomorrow you might have to move out to Java, and maybe next day have to move out to Go language, right? So consider programming language as a tool, understand the concepts thoroughly, as you said that project छोटा ही हो but concepts हमारे tight होने चाहिए उस समय, and I think that वहां पे मेरा एक्सपीरियंस भी यही था कि मैं नहीं समझ पाया था थर्ड ईयर के अंदर कि ये सब चीजें सच में जरूरी है, राइट? सो अगर मुझे समझ में आती तो शायद और भी अच्छा हो सकता था बट डेफिनेटली दैट्स गुड पॉइंट दैट यू मेड कि यार ये बहुत जरूरी होता है थर्ड ईयर में ये सब चीजें समझना कि कॉन्सेप्ट्स कितने जरूरी होते हैं, राइट? ओप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ये सब चीजों पे हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू गो इनटू डिग डीप इनटू प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स. एंड देन आई थिंक दैट इफ योर थर्ड ईयर goes good, and if you plan your studies, you plan your time well, definitely there's no one going to stop you from cracking a good product company. Yes. चलो अभी प्लेसमेंट की बात आई है हम्म. तो अभी बात करते हैं. अभी हम दोनों भी हायरिंग Right. कर रहे हैं, Correct. मतलब इंटरव्यू भी दिए हैं और Right. हम हायरिंग भी कर रहे हैं. पहले मुझे तुझे पूछना था कि तुमको क्या लगता है कि मतलब अभी तुमने इंटरव्यू भी ले ली है तो Right. फिर व्हाट आर द थिंग्स दैट इंटरव्यूअर सी व्हेन समवन टेक द इंटरव्यू? करेक्ट. ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जब हम फोर्थ ईयर में थे ना तो हमें भी यही डर लगता था कि इंटरव्यूअर्स पूछते क्या है एक्चुअली, एंड यू फियर अ लॉट, राइट? बिकॉज ड्यूरिंग योर फोर्थ ईयर जब आपके प्लेसमेंट चल रहे हो तो आपको सबसे पहला डर यही रहता है कि पढ़ तो सब लिया बट वो पूछेंगे क्या, राइट? And I think that I need to clear this up for college students who are in that placement phase, right? In the third year end and fourth year start. So we as an interviewer, what we look for is, see, let's say that first round, there's definitely going to be 2 or 3 rounds, technical rounds, right? So आपका पहला राउंड जो होता है ज्यादातर कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज्यादातर रहता है कोडिंग राउंड, राइट? दैट्स अ कोडिंग राउंड जहाँ पे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स इन arrays, strings, and then you have linked list, tags, queues, and going a little bit advanced on top of that is trees and graphs, right? So but zyadatar companies, I would say 95% of the companies focus more on arrays, string, linked list, tags, right? And कॉलेज स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स इस पे क्लियर करने चाहिए, राइट? वे दे फोकस ऑन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, उनका कोड हाथ में बैठना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट इंटरव्यू हमारा पूरा कोडिंग राउंड रहता है. सेकेंड राउंड के अंदर वी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, अंडरस्टैंडिंग अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, राइट? तो जैसे जिधर मैंने लिए होते तो 2 ही राउंड होते थे, जहाँ पे फर्स्ट राउंड में हम कोडिंग भी टेस्ट करते थे एंड वी यूज्ड टू टेस्ट द नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द वर्क दे हैव डन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता. सो प्रोजेक्ट्स क्या बनाए उन्होंने, राइट? वी डिग डीप इनटू द प्रोजेक्ट्स कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो पर्पस क्या था उसका, आपने उसको चैलेंज को कैसे सॉल्व किया, दैट इज, and the concepts that you have used inside it, right? So those are the fundamental thing, and it is irrespective of which tire company you are, right? We come from a tier 2 company, correct? So whether it's tier 1, tier 2, tier 3, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो प्रोजेक्ट के अंदर डेप्थ होनी जरूरी है, राइट? यू जस्ट मेक अ सिंगल प्रोजेक्ट बट दैट वन प्रोजेक्ट शुड हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, राइट? वो उसमें कॉन्सेप्ट्स दिखने चाहिए इंटरव्यूअर को, एंड अगर वो कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूअर को दिखे तो वो एक प्रोजेक्ट भी आपको वो कंपनी क्रैक करवा सकता है, राइट? दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 4 प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. मेक simple projects where you can highlight all those skills that you have, right? So projects is third thing. First is code, second is fundamental concepts, right? And third is projects that you should go with, and fourth is जैसे मैंने कहा कि what we as an interviewer right now seek is that you shouldn't have just कि यार मेरा technicals अच्छा है तो मैं crack कर ही लूंगा, नहीं. We also see that how good you are with communication, right? You need to have that effective communication where you can speak about the skills that you have. Otherwise सिर्फ वो अगर communication हम दोनों में नहीं हो रहा ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि we hire the candidate एंड वो यहाँ के टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हो तो जो आपके कस्टमर्स है उनके साथ वो डील नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, राइट? तो वो चीजें बहुत जरूरी है बच्चों को फोकस करना, राइट? कि अलॉन्ग विद द टेक्निकल्स कम्युनिकेशंस भी उनके साथ रहे, एंड वी सी द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ओनली फ्रेशर्स के लिए. तो वही चीज है जो हम लोग फर्स्ट 2 इयर्स में जो बकचोदी कर रहे थे, जो हम लोग बोल रहे थे कम्युनिकेशन स्किल, बाहर जाओ, खुद को बाकी सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, इसी चीज के लिए. तो वो Correct. चीज अगर तुम तब करते हो तो फिर हम लोग को इंटरव्यू देने के टाइम पे हम लोग को वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हेल्प करता है कि यार Right. कि कैसे खुद को प्रेजेंट करे, कैसे Right. बात करे, कैसे Right. खुद को अच्छे से
प्रेजेंट करे, वो बहुत चीजें इम्पोर्टेंट Right. हो जाती है। तो मैंने भी बहुत मतलब अभी 3-4 इंटरव्यू राउंड दिए हैं, Hmm. ये मतलब सॉरी इंटरव्यू Yeah. राउंड लिए हैं मैंने। Yes. तो फिर उसमें भी वही चीज होती है कि भले मार्केटिंग हो या फिर टेक हो, डजंट मैटर, लोग यही देखते हैं कि यार तुमको उस लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे भी सिनेरियोज देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कुछ कुछ सोशल मीडिया के इंटरव्यूज ले रही थी, वहाँ पे लोग बोलते कि हाँ मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया, ये किया वो किया। तो फिर मैं जब उनको सिनेरियो में डाल देती हूँ कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमको जैसे ठीक ठीक है तुम लोगों ने एफएमसीजी कंपनी में काम किया, तो अगर तुमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर डिश तुमको बेचना है, तुमको सेल्स चाहिए उसमें, तो फिर तुम कैसे करोगे? Right. सोशल मीडिया यूज करके तुम कैसे उसको मार्केट करोगे या फिर कैसे तुम वो चीज करोगे? तो फिर वो लोग वहाँ पे हकला जाते हैं, मतलब वो Correct. बात नहीं कर रहे। इसका मतलब वो है कि उन्होंने काम किया, बट जिस जिस डेप्थ में या फिर जिस नॉलेज पे उन लोग को काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उससे Correct. समझ में आ जाता है। तो वही चीज, Yes. तो फिर जो भी तुम चाहे वो टेक हो या फिर मार्केटिंग, डजंट मैटर, Right. जो भी तुम कर रहे हो उसमें इतना समझ लो कि यार वो इनसाइड आउट तुम समझ जाओ वो चीज Correct. कि मतलब ये चीज कर रहे हो तो फिर ये चीज उसको होना Right. चाहिए। Right. इट डजंट मैटर कि वो फेल हो गया, ये हो गया, वो तो बात की बात है, बट अगर तुमने वो चीज तुमने करी है तो फिर दिखना चाहिए कि तुमने वो करी है। Right. वो चीज Right. इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वो Yes. दैट इज इट। Yes, I absolutely agree. मतलब कि मुझे भी यही लगता है कि अगर अगर स्टूडेंट्स को कोडिंग वगैरह तो ठीक है, they'll be definitely doing it and they will check out resources like ChatGPT and going through all the YouTube videos, right? तो वो तो है ही, मतलब टेक्निकल्स तो बच्चे कर ही लेते हैं, बट आई थिंक दैट टू थिंग्स दैट आर रियली वेरी नेसेसरी while you're getting interviewed. Number one, as an interviewer, we'll be checking your communication skills, but the second and the most important thing we'll look out for is your confidence while giving up answers, right? So you have to be confident and you have to communicate with your interviewer, right? You have to have a to and fro communication, right? Ask him the questions if you don't understand, say sorry if you aren't able to recall the answer, right? So that only happens when you are confident enough to give that interview. So I think that कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्निकल्स भले उनके अच्छे हो जाते, दे आरंट कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू, वेयर दैट्स द पॉइंट कि वहाँ फेल हो जाते हैं। आई थिंक कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का माइंडसेट अभी यही होना चाहिए कि हमें पढ़ाई तो हम कर ही रहे, बिकॉज उसके लिए तो रिसोर्सेज है, बट कम्युनिकेशंस कैसे इंप्रूव करनी है मुझे हमें। एक चीज मुझे बहुत हेल्प करी कि मैंने इंटरव्यू देते ही थी। यस, दैट्स इंटरव्यू गुड। जैसे जैसे देते थे तो है ना, करेक्ट। तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ता यस जाएगा यस एंड और एंड तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली। व्हाट आर द क्वेश्चंस, करेक्ट करेक्ट। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या राइट। चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर वो चीजें एंड बहुत यू हैव हेल्प। टू एक्सेप्ट फेलियर्स, राइट? देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम्स कि आपको लगेगा कि यार सब लोग होते जा रहे हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, राइट? सो दैट्स यू शुड स्टे काम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? आपको काम रहना है, आपको आपको एनालाइज करना है कि मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, टेक फीडबैक फ्रॉम योर इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर्स आर रियली वेरी हैप्पी व्हेन यू आस्क फॉर फीडबैक्स, राइट? सो वो फीडबैक लेंगे, आप लिखो वो फीडबैक, ट्राई टू इम्प्रोवाइज इन नेक्स्ट इंटरव्यू, just stay calm and patient. God has something better for you, right? Just always think that, right? God has something better for you. So be confident, stay calm, analyze your mistakes, improvise on those mistakes, and definitely you'll get a job if you have studied well enough. And that's why I said that when we are talking about confidence and communication skills, that's where I think that the first 2 years of a college are really very important. Because वहाँ पे जब आप extra curriculars में involve रहते हो ना, so that's where ये जो आपको जो 4th year में काम आती है ना, वो यहाँ से काम आती है सारी चीजें। तो confidence and the communication that you improve at the first 2 years of your college is is a part that कि यहाँ पे अब वो रिजल्ट में दिखता है कि नहीं, अब आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू। इवन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो जब मैं था ना, तो आई वॉज नॉट प्रिटी मच टेक्निकल, राइट? मैं इतना ज्यादा भी टेक्निकल नहीं हो पा रहा था। आई वॉज प्रिटी गुड, सॉर्ट ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुड से नॉट एक्सीलेंट, नॉट सेटिस्फैक्टरी, बट एन एवरेज स्टूडेंट मेरे एक्सपीरियंस में। तो बट the one skill that I gained in the first 3 years of college was communication and confidence. मैं जब इंटरव्यू के सामने जा रहा था, मैं उसको पता ही नहीं लगने दे रहा कि आई डिडंट हैव दैट स्किल। आई वाज जस्ट कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये मुझे आता है। You ask me, I'll be able to deliver you. If not, I'll be definitely saying sorry. But I am confident that okay, even if I don't know, I'm ready to learn from you guys. And that's why I think that this helped me a lot to crack an interview at Persistent Systems, right? क्योंकि they did ask me questions. I was able to answer each and every question. But I think कि मेरा कॉन्फिडेंस ही था जो मुझे इंटरव्यूज में हेल्प कर रहा था क्रैक करने के लिए, अलॉन्ग विद द टेक्निकल्स। बट कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इज मस्ट इन एज अगर कॉलेज के बच्चों के माइंडसेट की बात करें, दे शुड फोकस ऑन दैट पार्ट एज वेल कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस इज रियली वेरी नेसेसरी। Yeah, that's या important. यस यस। अभी वो सब कुछ हो गया, Correct. प्लेसमेंट भी हो गए, तो हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस? अलग होता है,
यस है ना? बिल्कुल। तो उसका मैं तो बहुत 1 घंटे का पॉडकास्ट बना सकती हूँ, तेरा बता? तो मेरा फर्स्ट जॉब बहुत एक्साइटिंग था, मतलब सीरियसली जब यू नो मैं 3 इयर्स फ्लैशबैक में अगर मैं चले जाऊँ और मेरे को जब मेरे को वो ऑफर लेटर आया था परसिस्टेंट का, एंड व्हेन आई शोड दैट टू माय पेरेंट्स कि यार मुझे ऑफर लेटर आ गया इन कोविड टाइम्स, इट वाज रियली अ पैनिक जोन कि ऑफर्स आएंगे कि नहीं आएंगे. सो जब परसिस्टेंट का ऑफर, इज रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी, एंड व्हेन आई शोड इट टू माय पेरेंट्स, लाइक मेरी मम्मी तो रोने ही लग गई मेरे सामने. मैं खुद डर गया कि क्यों हंसने, मतलब खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है. So but they were really very happy, and it feels good when your parents are proud of you, right, that you have cracked your first job is really memorable, right. Persistent is still in my mind कि यार वो job थी जो मैंने crack करी थी, and you feel proud of yourself as well that you have cracked something, and it helps you gain your confidence as well, so that you could take next step towards either cracking new companies or taking a step forward into the corporate world, right. So I think that first job का जो excitement रहता है वो अलग ही रहता है. मेरा excitement तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं दोस्तों को पार्टी देने चला गया and all that stuff, so it was really a good experience. But yeah, मेरा ये था कि I don't wanted to get into comfort zone, so as soon as my internship ended in the 4th year, I switched over to another product-based company. I learned a few things during my last semester. So I think I would suggest college students as well कि comfort zone में नहीं आना है. अगर हमारा एक बार placement हो गया, keep on enhancing your skills, keep on learning new things, because computer science is something wherein you can continuously improvise yourself, right? Technology is growing. So I think comfort zone से बाहर निकल के continuously enhance करते रहेंगे ना, तो you can crack any best company that is there in globally, right. You can crack Google as well if you want, right. So मतलब आपकी skills के ऊपर बहुत depend करता है, आपको comfort zone में नहीं रहना है, and you have a lot of time after that, right. When you get placed in a company, you have a lot of time where you can upgrade your skills, right, because you don't have that pressure कि अब मेरी कंपनी भी नहीं हुई है, मैं क्या करूंगा XYZ. So एंड सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं मैं क्रैक कर लूंगा इजिली. एज आई सेड कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है इंटरव्यूज में. आपको कुछ भी नहीं आता हो, कॉन्फिडेंस जरूरी है, राइट. वही तो बताना जरूरी है, मतलब यस ये बंदा बहुत सही से कर लेता है, मुझे इससे बहुत सीखने को मिलता है. कभी-कभार इसको सिर्फ देखती हूँ कि ये बात कैसे कर रहा है, बस उससे समझ में आ जाता है कि हाँ बताना ये मैं जरूरी है. चश्मा भी इसीलिए पहनता था कि डिलीजेंट लगूं, राइट. हाँ, मेरे को भी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं. So yeah, I would say that ki confidence zaruri है, and slowly you grow, slowly you try to enhance your skills, right. So coming to your question, experience तो मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, मतलब कि proud moment. And then again जब मैंने दूसरी product company crack करी, तो when I showed it to my parents कि यार देखो I cracked another company, they were like मम्मी तो अरे वाह बेटा वाह आपने क्या करा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. They were really proud of, and that feeling, क्या होता है ना कि हमें उस चीज से खुशी नहीं मिलती कि हमने क्रैक कर दिया. खुशी हमें तब मिलती है जब पेरेंट्स प्राउड होते हैं कि नहीं यार यू हैव अचीव समथिंग इन योर लाइफ, राइट. हमारा पढ़ाना वर्थ रहा आपको, राइट. सो वो जो फर्स्ट जॉब थी वो सीरियसली मतलब अलग ही खुशी होती है उसमें. वो तो है, वो तो है. Yes. वो ऐसा लगता है कि जब मैंने भी पहला इंटरव्यू क्रैक किया था, वो फिर पुणे आना पड़ा. Right. फिर से मुझे पुणे छोड़ना नहीं था, Hmm. क्योंकि हमारा मतलब आलमगी में ही था Correct. कॉलेज. तो पुणे में ऐसा था कि हाँ अभी सेकंड होम Yes, ओनली, कि yes, अभी it's a आते second home. जाते हैं. अब Correct. मेरे रिलेटिव्स भी यहीं पे है थोड़े बहुत, तो फिर Correct. वो फैमिलिटी भी थी. बट पुणे बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया लोगों को, मतलब हाँ, इधर right. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा Correct. नहीं है. और फर्स्ट जॉब जैसे बोल रहे थे वहाँ, और उसमें ऐसी चीज होता है कि वहाँ पे ना जब फर्स्ट जॉब होता है उसमें कॉलेज से मतलब कॉलेज से अभी निकले हुए होते हैं, हाँ, ज्यादा ये correct. होता नहीं है. Right. तो सब लोग ही फ्रेंड्स ढूंढते हुए होते Yes. हैं कॉर्पोरेट में भी. तो Correct. वो मुझे अभी भी याद है. मुझे अभी मेरी एक फ्रेंड है, शी हर नेम इज तमन्ना. अभी भी हम लोग मिलते हैं. वो मेरे फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट जॉब में थी, हम लोग एक साथ थे. तो वो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, Right. पर वो फर्स्ट जॉब में ही होता है. Yes, सेकंड जॉब नहीं में नहीं होता, नहीं होता. This is my second job. I think that जो मेरे कलीग्स, जो वो कलीग्स नहीं बोल सकते, फैमिली हो गई थी हमारी फर्स्ट. एंड द एक्सपीरियंस दैट यू गेन इन योर फर्स्ट कंपनी, द फ्रेंड, द फैमिली दैट यू गेट इन द फर्स्ट कंपनी इज, राइट, आपको कभी आगे नहीं मिलने वाली है. Like, मेरे को जो फर्स्ट 2 years में जो कॉर्पोरेट के जो दोस्त मिले ना, वो उनको मैं कभी नहीं भुला सकता, राइट. वो तो नहीं हो वो सकता. उनकी और कोई वो जगह नहीं ले जैसे सकता. सेकंड दूसरा कंपनी स्विच करते हैं, बट Yes. बहुत कम बार कम, ऐसा होता yes. है कि यार कुछ के सब लोगों से Correct. सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में वो हो जाता है कि Yes. तुम खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी Right. लाइक हाँ चीजें ऐसी Yes. करनी है, ऐसी करनी है, बिल्कुल. ज्यादा तुम Right. इतना खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते. Yes. बट हाँ कुछ कुछ लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड होता है, बट
हर इंसान के साथ वो नहीं होता, जैसे Right. फर्स्ट कंपनी में हम सब लोग से बात कर रहे हैं तो ये Right. अभी कॉलेज से निकल रहे होते हैं, सब लोग उसी माइंडसेट Hmm. से होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है, वही चीज। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अभी हम लोग ने इतने सारे बात करी है कि फर्स्ट ईयर हो गया, फिर ये सब चीजें, तो एक बार समअप करते हैं Okay. क्या क्या चीजें तुमको लगता है कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है और ये देख रहा है, तो उसको क्या क्या टेक अवेज होने चाहिए इस पॉडकास्ट से? Okay. Okay. Let's again go into the flashback version of we being in colleges, right? So I think that the first key takeaway should be that they should focus on overall development, right? And overall developments has subtopics like you should continuously be enhancing your skills, right, in terms of technical, right? Second subtopic would be that uh, you should be, if you aren't good at soft skills, you should try improving on them, right? Soft skills are really very necessary. So second point should be soft skills आपके improve होने चाहिए, communication skills वगैरह, right? Third topic would be that you should you should be, if you didn't get an opportunity to lead a team, you should be a good team player, right? People I can see in their resume always mention leadership skills, right? Only 1% of the students mention team player, right? I don't know when did they leaded a team of like 7 to 8 people, right? That's a false statement coming up from them in their resume. तो मुझे लगता है कि लीडरशिप स्किल्स से तुमको टीम प्लेयर ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए. वाई? क्योंकि कॉर्पोरेट में आप सीनियर पोजीशन पे नहीं आ रहे हो, आप एक जूनियर पोजीशन पे आ रहे हो, विल बी लर्निंग थिंग्स फ्रॉम योर सीनियर्स, राइट? सो यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर विद देम. सो आई थिंक टीम प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, I was not the captain, but I was a team player. So that helped me learn a lot from my seniors ki how to be a good team player, right? So every single thing teaches you something, right? So third ये मेरा रहेगा कि key takeaway ki focus on these things as well, right? Leadership, being a good team player, right? Fourth is be a part of extracurricular activities, have fun. College won't come back. Yeah, you make memories as much as you can. क्योंकि वो मेमोरीज हमेशा याद रहती कॉलेज की मेमोरी. बहुत सारी चीजें करी है अभी. यस, अभी हम बात करने बैठे तो और 2 घंटे 9 करेक्ट, घंटे चलेगा, इससे करेक्ट. तो बाद में आराम से करेंगे. Yes, so go on trips, have fun, enjoy those 4 years of your life, but don't forget to study, guys. Right? Chat GPT is already taking up jobs, so this is something serious that is in the market, right? Chat GPT is definitely going to take away jobs, so you should be very much focused on your studies. You have to stand out amongst when you are compared with your other students, right? क्योंकि अगर सब सिमिलर हो गए तो फिर वो चांस कम हो जाते हैं आपके हायर होने के. सो यू हैव टू हैव दैट वन स्किल वेर यू कैन स्टैंड आउट ऑफ समथिंग, राइट? So in my experience, I think that I was not good at technicals, right? I was average in technicals, as I said. But I think that my part of being standing out was confidence and communication, right? मैं easily confident, मतलब confidence मेरा easily gain कर हो गया था, and communication was okay with me, right? I was very okay with communicating with others. So I think that was a point कि मैं वहाँ stand out हो सकता था interviews के सामने. So हर बच्चे को, हर कॉलेज स्टूडेंट को समझना जरूरी है कि मेरे अंदर वो ऐसी क्या स्किल है जहाँ पे मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ. इट माइट बी टेक्निकल्स एज वेल, एंड टेक्निकल्स के भी अंदर बहुत सब टॉपिक्स होते हैं, बट यू हैव टू गेट अवे फाइंड दैट वन स्किल दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट कि नहीं यार, आई एम बेस्ट इन दिस, नोबडी कैन बी लाइक ahead of me in this, right? So you can easily get if you explore more and more, right? If you आप जैसे दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, आपको खुद को भी एक्सप्लोर करना जरूरी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि राइट, दिस इज द थिंग दैट मेक मी स्टैंड आउट ऑफ अदर्स. Yeah, right. That's a really good advice, and Yeah. thank you so much for Yes. this podcast. It was really good. Yep. And Thank I you hope so you much. will be back. Definitely, for sure. अब तो बहुत सारे podcast Yes, मिलेंगे we have यहाँ much पे, more to talk. कॉलेज डेज के बहुत सारे किस्से हैं भाई. अगर तुमको सुनना है तो फिर बताओ कमेंट्स में, और तुमको कौन सी क्या क्या चीजें तुम लोगों को सीखी, और तुमको क्या लगता है कि यार हाँ ये चीजें अच्छी लगी, तो तुमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? Until then, I will see you next week. Bye.